BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی۔ پاکستان میں سیاسی اور سماجی مسائل پر کھل کر لکھنے والے کئی افراد غائب، لیکن کیا اصل نشانہ آزادی اظہار ہے؟ وسطی اور مشرقی یورپ شدید سردی کی لپیٹ میں 20 افراد ہلاک، ہر طرف برف ہی برف، معمولات زندگی متاثر۔ اور اگر تاج محل کو فضا سے دیکھنے کا موقع ملے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ گزشتہ چند دنوں میں پاکستان میں لبرل اور سیکولر سوچ کا پرچار کرنے والے مختلف بلاگرز اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے وابستہ افراد لاپتہ ہیں۔ ان افراد کے لاپتہ ہونے کو پاکستان میں کئی مبصرین آزادی اظہار پر حملہ قرار دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے آج اسلام آباد میں فاطمہ جناح یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور کراچی میں مختلف تنظیموں نے مظاہرہ کیا اور مطالبہ کیا کہ ان افراد کو بازیاب کروایا جائے۔ اسلام آباد سے طاہر عمران کی رپورٹ۔ پاکستان میں ایک تاثر یہ ہے کہ فوج کے خلاف بات کرنا اور سیکولر سوچ کا سرعام پرچار کرنا اتنا آسان نہیں، مگر سوشل میڈیا پر شناخت چھپا کر بہت سوں کے لیے بات کرنا آسان تھا۔ فیس بک اور ٹویٹر پر ایسے کئی اکاؤنٹس ہیں جو کھل کر ایسی باتوں کا اظہار کرتے ہیں، مگر گزشتہ چند دنوں میں کچھ ایسے بلاگز بند کر دیے گئے یا ان تک رسائی بند ہے اور ان کے چلانے والے ایڈمنز بھی لاپتہ ہیں۔ کیا ان ایڈمنز کے لاپتہ ہونے کی وجہ یہ پوسٹس ہیں؟ مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات نے ان افراد کی بازیابی کا مطالبہ کیا ہے۔ طاہر عمران، BBC اسلام آباد۔ اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت امریکی ریاست فلوریڈا سے ہمارے ساتھ بذریعہ اسکائپ براہ راست موجود ہیں ڈاکٹر محمد تقی، جو کالم نگار اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اور ان کا اپنا کالم بھی پاکستان میں پابندی کا شکار ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر تقی، سیربین میں خوش آمدید۔ یہ کچھ ہی دنوں میں اس طرح کم سے کم 3 لوگوں کا غائب ہونا، آپ کے خیال میں کیا ہو رہا ہے؟ جیسا آپ نے کہا کہ اظہار کی آزادی کے جو کچھ دائرہ تھا اس کو پاکستان میں تنگ کیا جا رہا ہے بہت دیر سے۔ پہلے تو مین سٹریم میڈیا کے اوپر تلوار گیری، ٹیلی ویژن وغیرہ میں سیکولر لبرل آوازوں کا فقدان ہے، ان کو انڈائریکٹلی پریشرائز کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے۔ اخباروں میں لکھنے میں بہت مشکلات پیش آتی ہیں۔ انگریزی اخباروں میں کسی حد تک آزادی تھی لکھنے کی، مگر اس کے اوپر بھی قطعاً لگتی جا رہی ہے، اور اب جو ہے اس دائرے کو، اس ڈریگ نیٹ کو سوشل میڈیا کی طرف پھیلایا جا رہا ہے، جہاں پہ نسبتاً چیکس اینڈ بیلنسز یا ایڈیٹوریل اوور سائٹ اس قسم کی نہیں ہے کہ جہاں پہ سیلف سینسرشپ ہو، یعنی خود کو ہی پابند کر لیا جائے، کیونکہ پاکستان میں اخبارات بہت سارے اور دوسرے جو رسائل کے ذریعے ہیں وہ سیلف سینسر بھی کرتے ہیں حکومتی یا مختلف اداروں کے پریشر کے نیچے۔ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جو کہنے والے ہیں وہ کس زبان میں کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، اس پر بھی بڑا انحصار ہوتا ہے۔ تو یہ جن 4 صاحبان کو لاپتہ کیا گیا چند روز میں، خصوصاً سلمان حیدر، ان کی باتیں بڑی کھلی اور صاف تھیں۔ وہ بلوچستان کے لاپتہ لوگوں کے بارے میں بات کرتے تھے، ان لوگوں کے بارے میں وہ سوال اٹھاتے تھے کہ جو بلوچستان آپریشن وغیرہ سے اس کا تعلق ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ بہت کھل کر بات کرتے تھے ان میں سے کچھ لوگ، اس طرح جو لوگ اپنی رائے شائع کرتے ہیں، کھل کر بات کرتے ہیں، ان کا اس طرح غائب ہونا، کیا آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی پیغام بھی ہے جو پوشیدہ ہے؟ جی بالکل، پیغام تو یقیناً ہے۔ دیکھیے، یہ پچھلے چند سالوں سے یہ طریقہ کار جاری ہے۔ بلوچستان ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر تو پورا ایک آئرن کرٹن پاکستان میں گرا ہوا ہے، ایک آہنی پردے کے پیچھے ہے وہ۔ وہاں پر جو بھی فوجی کارروائی جاری ہے اس پر رپورٹنگ کی آزادی نہیں ہے۔ وہاں سے جو لوگ اٹھائے گئے ہیں سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں، ان کے بارے میں بات کرنا یا ان کے بارے میں معلومات کرنا، یعنی سپریم کورٹ تک کو ان کے بارے میں بات کرنے کی اجازت پاکستان میں نہیں تھی، حالانکہ انہوں نے بڑی کوشش کی۔ وہاں پر صحافیوں کو جانے کی اس طریقے سے آزادی نہیں ہے۔ تو یہ جو لوگ بالخصوص بلوچستان کے بارے میں بات کرتے تھے، ان کے اوپر یا حملے ہوئے یا ان کو لاپتہ کیا گیا۔ سبین محمود کا نام ہے اس میں، جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھی، حامد میر مشہور صحافی اور اینکر ہیں، ان کے اوپر انہوں نے یہی باتیں کی۔ بالکل نہیں ڈاکٹر صاحب، میں یہاں یہ کہنا چاہتی تھی کہ ظاہر ابھی واضح نہیں ہے کہ یہ جو لاپتہ ہوئے ہیں لوگ، ان کے پیچھے کون ہیں اور کس طرح سے یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن اسلام آباد اور لاہور جیسے بڑے شہروں سے اگر لوگ اس طرح غائب ہوتے ہیں، حکومت آپ کی بے بس نظر آتی ہے؟
जी, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि वाज़ेह नहीं है, मतलब जो लोग इस मामले को जानते हैं और गौर से देख रहे हैं, वो जानते हैं कि कभी छुपे हुए खंजर, कभी खिंची हुई तेग सिपाही ज़ुल्म के एक-एक ढब से वाकिफ़ हैं। ऐसा नहीं है कि हम अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि इस वक़्त हम इल्ज़ाम तराशी नहीं करना चाहते। बात ये है कि जिन लोगों के किरदार पर और जिन लोगों के एक्शंस के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, इसके बेनिफिशरी वो हैं। और रियासत इसलिए मफलूज नज़र आती है कि रियासत के अंदर एक रियासत मौजूद है जो काम कर रही है, जो हुकूमतों को बेबस किए देती है। पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत है जिसको कि कभी धरनों के ज़रिए, कभी किसी और ज़रिए से उनको बिल्कुल पाबंद कर दिया गया। उनका दायरा जो है वो चंद चीज़ों के अलावा किसी और के ऊपर चलता नहीं है। बलूचिस्तान और खारजा पॉलिसी ऐसी चीज़ें हैं कि जो सिविलियन हुकूमत की पहुँच से दूर रख दी गई हैं। और इस बारे में जो भी सवाल उठा रहा है, और बिलखुसूस अगर उर्दू में बोल रहा है या उठा रहा है, उसकी बिल्कुल गुंजाइश पाकिस्तान में नहीं दी जा रही। जी, फ्लोरिडा से डॉक्टर मोहम्मद तकी, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। इनायत आपकी। आइए अब देखते हैं कि इस बारे में हमारे फेसबुक पेज पर क्या कहा जा रहा है। असदुल्ला शाह इस्लामाबाद से लिखते हैं, पाकिस्तान के मौजूदा सिस्टम के पास अवाम के मसाइल का कोई हल नहीं है। अवाम का अपना अदालती निज़ाम इंसाफ से एतबार उठ चुका है। हर तरफ नामालूम अफराद का खौफ पाया जाता है। रिजवान हमीद लिखते हैं, इस मुल्क में इंसान दोस्त लोगों को गायब कर दिया जाता है और दरिंदों को आज़ादी हासिल है। और मसूदुल हक दुबई से लिखते हैं, बात दरअसल सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ मुक़द्दस इदारे पर सवाल उठाने वाले को ही उठा लिया जाता है। आइए अब दीगर अहम मौज़ूआत पर एक नज़र डालते हैं। मशरक़ी और वस्ती यूरोप में शदीद सर्दी की वजह से इख्तिताम हफ्ता 20 से ज़्यादा लोग हलाक हुए हैं। दायरा क़ुतुब शुमाली से आने वाली सर्द हवाओं की वजह से कुछ इलाकों में दर्जा हरारत -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया और बरअज़म के जनूबी हिस्सों में तुर्की और यूनानी जजीरों तक बर्फ़ गिरी है। तफसील के साथ खालिद करामत। ऐसा शाज़ो नादिर ही होता है कि दायरा कुतुब शुमाली से आने वाली शदीद सर्दी की लहर पूरे यूरोप को अपनी लपेट में ले ले। यहाँ तक कि बहिरा रोम को लगने वाले यूनानी जजीरों के साहिलों पर भी बर्फ़ गिरी। इटली के शुमाल मशरकी हिस्से में पहाड़ी इलाके डोलोमाइट में दर्जा हरारत -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। ये वस्ती इटली में अमत्रीचे का इलाका है जो गर्मियों में आने वाले ज़लज़ले से बुरी तरह मुतासर हुआ। यहाँ बहाली का काम सख्त मुतासर हुआ है। रोम में पोप फ्रांसिस ने बेघर अफराद के लिए दुआ की। सर्दी इतनी सख्त थी कि सेंट पीटर स्क्वायर में पानी के चश्मे जम गए। इस्तांबुल में मुसलसल 3 दिन तक बर्फ पड़ती रही। टर्किश एयरलाइंस ने 600 परवाजें मंसूख कर दी। यूरोप पैदल सफर करके आने वाले हजारों पनाहगज़ीनों को भी सर्दी से सख्त खतरा है। 3 पनाहगज़ीन बल्गारिया के पहाड़ी इलाकों में सफ़र के दौरान हलाक हुए। इख्तितामी हफ्ता रूसियों ने पिछले 120 बरस के सर्द तरीन मौसम में ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस मनाई। मॉस्को में दर्जा हरारत -30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, मगर यहाँ लोग सख्त सर्दी के आदी हैं। बरतानिया यूरोप की निस्बत सर्दी की लहर से बचा हुआ है, मगर मौसमी पेशगोई करने वाले कहते हैं दायरा कुतुब शुमाली की सर्दी से बरतानिया में भी दर्जा हरारत सख्त सर्दी वाले ममालिक आइसलैंड और स्वीडन जितना गिर जाएगा। शामी सदर बशार अल असद ने फ्रांसीसी मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मशरक़ी हलब पर हमला जायज़ था। शाम की सरकारी फ़ौज ने गुज़श्ता माह हलब को बाग़ियों के कब्ज़े से छुड़ा लिया था। दूसरी तरफ फ्रांस की जानिब से भेजे गए एक वफ़द की इतवार को शामी सदर से मुलाकात के बाद वफ़द के एक रुकन ने कहा है कि सदर असद जहादी गिरोहों के अलावा तकरीबन 100 बागी गिरोहों के साथ आइंदा माह कज़ाकिस्तान में होने वाले अमन मुज़ाकरात के दौरान बातचीत के लिए तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी एलची यांग ही ली म्यांमार पहुँच गई हैं। वो अपने 12 दिन के दौरे में रोहिंग्या मुसलमानों के इंसानी हुकूक़ की पामाली के इल्ज़ामात की तफ्तीश करेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में 22,000 रोहिंग्या पनाह हासिल करने के लिए बांग्लादेश गए हैं। और टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल की जानिब से आईफोन के लॉन्च को 10 साल पूरे हो चुके हैं। आईफोन ने मोबाइल सनत को हिला कर रख दिया था और इस फ़ोन के मुतारफ होने से कम्युनिकेशन निज़ाम मुकम्मल तौर पर तब्दील हुआ। अब तक दुनिया भर में 1 अरब आईफोन्स बिक चुके हैं और इसने एप्पल को दुनिया की अमीर तरीन कंपनी बना दिया है।
आइए अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आपकी दिलचस्पी किन खबरों में है। शामी सदर बशार अल असद का बयान कि हलब पर बमबारी जायज़ थी सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली खबर है। फिल्म ला ला लैंड ने 7 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जीतकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इसके अलावा इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में फ़ौजी कैंप पर हमले की खबर भी काफ़ी पढ़ी जा रही है। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा कि 2016 इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात के ज़िम्मे में कैसा रहा। और अब आप हवाओं में उड़ते हुए भी ताजमहल का नज़ारा कर सकते हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आलिया नाज़की। गुज़श्ता बरस सन 2016 के दौरान इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते ख़राब रहे। ये ताल्लुकात कभी दहशतगर्द हमलों के सबब तो कभी कश्मीर के हालात की वजह से बिगड़ते गए। तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि अगर इंडिया की हुक्मरान जमात BJP आइंदा माह होने वाले रियासती इंतखाबात में कामयाब होती है तो नए बरस में सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। दिल्ली से हमारे नामनिगार शकील अख्तर की रिपोर्ट। गुज़िश्ता बरस भारत और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत का आगाज होने ही वाला था जब साल के पहले हफ्ते में पठानकोट के फ़ज़ाई अड्डे पर मुश्तबा शिद्दत पसंदों ने हमला किया। ताल्लुकात यकलख्त बदल गए। 2016 भारत पाकिस्तान रिश्तों के लिए बहुत ही ख़राब साल रहा है, लेकिन मैं नहीं मानता ये इसलिए ख़राब रहा है क्योंकि उसमें कोई डोमेस्टिक कंपल्शन थी। ये इसलिए ख़राब रहा है क्योंकि टेररिस्ट अटैक्स हुए और जो टेररिस्ट थे वो पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट थे और पाकिस्तान ने उनको रोकने के लिए कुछ नहीं किया बल्कि उसको कश्मीर मसले से जोड़ के देखा और उसको और आगे बढ़ा दिया। सितंबर में उड़ी के एक फौजी कैंप पर हमला हुआ। जवाब में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया। जो प्रोसेस सितंबर से शुरू हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक जिसको कहा गया, उससे जहाँ तक मैं समझती हूँ बहुत नुकसान हुआ है। मुझे लगता है कि इंडिया पाक रिलेशंस को भी नुकसान हुआ है, कश्मीर को बहुत बुरा नुकसान हुआ है और वो कब रिकवर करेगा मुझे समझ नहीं आता। भारत का मौक़िफ़ सख्त होता गया, बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए। मेरे को लगता है उन्होंने देख लिया है कि जहां तक हम पाकिस्तान को लेके एक हार्ड लाइन लें, एटलीस्ट जो रेटरिक है उसको हार्डन करें तो उसका हमें पॉलिटिकल फ़ायदा होएगा और मेरे को लगता है इसके कारण स्थिति और बिगड़ेगी। आइंदा माह उत्तर प्रदेश समेत कई रियासतों में असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं। तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि इन इंतखाबात के नताइज भारत पाक रिश्तों पर बरह रास्त असरअंदाज होंगे। सर्जिकल स्ट्राइक, कश्मीर में बातचीत न करना, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई की बात करना, एक ऐसे आदमी को आर्मी चीफ बनाना जो काउंटर इंसर्जेंसी एक्सपर्ट है, ये दिखाना कि हम तैयार हैं, तुम करो क्या करना चाहते हो। वो सोचेंगे शायद मैं इस वजह से भी जीता हूँ और भी वजह रही होंगी। तो मुझे लगता है अगर जीत गए तो बातचीत शुरू नहीं होगी और अगर हार गए तो मुझे लगता है फिर बातचीत का रास्ता कश्मीरियों के साथ भी खुलेगा और हो सकता है पाकिस्तान के साथ भी खुलेगा। गुज़िश्ता 6 महीने से भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में शदीद बेचैनी रही। इसका बरह रास्त असर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर पड़ा है। ये तो पिछले 25 सालों से इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम एक दूसरे पर वार और पलटवार का सिलसिला ये तो जारी है, लेकिन ये बात भी अज़हर मिनल शम्स है कि जो दोनों मुल्कों के दरमियान, सिर्फ दोनों मुल्कों के दरमियान नहीं बल्कि जनूबी एशियाई खत्ते में क़याम अमन का जो रास्ता है वो कश्मीर से ही होकर ही गुजरता है। पिछले कुछ बरसों में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात कंट्रोल लाइन पर दरअंदाजी और शिद्दत पसंदों के हमलों से ही ख़राब होते रहे हैं। फ़िलहाल सरहदों पर खामोशी है। कश्मीर के इन पहाड़ों के दरमियान वाक़े कंट्रोल लाइन पर दरअंदाजी और गोलाबारी से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पूरे बरस कशीदा रहे। ये ताल्लुकात नए साल में कैसे होंगे, इसका दारोमदार इस बात पर होगा कि कंट्रोल लाइन कितनी पुरसुकून रहती है और कश्मीर कितना पुरन रहता है। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, कुपवाड़ा, कश्मीर। अगर आप आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए। पता है youtube.com/BBC उर्दू। हमने BBC उर्दू के खुसूसी सीज़न क़त्ल व ग़ैरत के दौरान बनने वाली रिपोर्ट्स पर एक प्लेलिस्ट भी तैयार की है जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर खुशकिस्मती से आपको ताजमहल के सामने खड़े होने का मौका मिला हो तो यकीनन आपको अंदाज़ा होगा कि ये मंज़र कितना ज़बरदस्त होता है। लेकिन ज़रा तसव्वुर तो करें कि आपको फ़ज़ा की बुलंदी से ताजमहल के नज़ारे का मौका मिले तो कैसा रहे। अब वाकई ये मुमकिन हो सकता है। ताजमहल के नज़दीक गर्म हवा से उड़ने वाले गुब्बारों का एक मेला इसी मकसद के लिए मुनक़िद हो रहा है। को मुंतज़मीन के मुताबिक अभी इन गुब्बारों के मुसाफिरों की तादाद बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा तादाद बढ़ती जाएगी। तफसील के साथ काशिफ कमर।
फजाओं की बुलंदी से ताज महल की सैर, एक मुनफरिद और यादगार तजर्बा। 12 मुल्कों से आए गर्म हवा के गुब्बारों के 15 पायलट ताज महल पर इस मेले में शरीक हैं। हवा में बुलंद होने के बाद इन गुब्बारों को इस मशहूर आलम यादगार से कम 500 मीटर दूर रहना होता है, लेकिन मंजर फिर भी गैर मामूली होता है। गुब्बारे की परवाज़ हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर से मुख्तलिफ होती है और गुब्बारे मुस्तकिल बहुत कम बुलंदी पर उड़ सकते हैं। साथ ही ये वाहिद हवाई सवारी है जो सिर्फ हवा के जोर पर ही उड़ और वापस उतर सकती है। दुनिया में कहीं भी कोई हवाई जहाज जमीन से सिर्फ 50 फुट की बुलंदी पर नहीं उड़ पाता। गर्म हवा के गुब्बारे इंडिया में एक नई चीज हैं और अभी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते। मेले के मुंतज़मीन यही चीज बदलने के लिए कोशा हैं और उनके मुताबिक इंडिया इस मकसद के लिए मिसाली जगह हो सकती है। गुब्बारों में शॉक एब्जॉर्बर होते हैं और न ही पहिए। अगर हवा नहीं है तो जमीन को छूते ही ये रुक जाते हैं और हवा चलने की सूरत में 1-2 बार रिबाउंड के बाद रुकते हैं। और अगर हवा तेज हो तो इस काम में जरा और देर हो जाती है या फिर गुब्बारे की बास्केट साइड पर उलट जाती है। वैसे यूं लैंडिंग भी कोई गैर मामूली बात नहीं है। और इंडिया जैसी जगहों पर जब गुब्बारे जमीन पर आने लगते हैं तो बहुत सारे हैरान लोग ये मंजर देखने उमड़ आते हैं। 1-2 नहीं, सैकड़ों लोग गुब्बारे देखने दौड़े आते हैं और इनमें हर एक हवाई सफर के इस अनोखे तजर्बे के इश्तियाक में डूबा दिखाई देता है। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाने वाले इंसानी हकूक़ के कारकुनों का लापता होना आज सरबीन का अहम मौजू था। गुज़श्ता चंद दिनों में पाकिस्तान में लिबरल और सेकुलर सोच का प्रचार करने वाले मुख्तलिफ ब्लॉगर्स और सोशल मीडिया अकाउंट से वाबस्ता अफराद लापता हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक हमारी वेबसाइट bbcurdu.com देखते रहिए। आलियानाज़की को अब इजाज़त दीजिए।